Hello student, my name is Shruti Jain and I am your faculty of International Marketing. Hope all you are doing well at your home and taking care of yourself and your loved one. So in the last lecture we have discussed the importance of positioning, how positioning is very important for a marketer who wants to start a business at international level. Basically positioning means giving your customer a reason to buy the product, creating the image of the company in the eyes of your customer. Now in this section, in this lecture we will discuss what is market selection and the process of market selection. So basically what is selection means selecting your customers on the basis of your market segmentation done by you and your marketing research team. So segmentation means converting your heterogeneous market into the homogeneous market, because you cannot satisfy one, you need to choose the target market, and that you need to decide your marketing strategies upon that. Like if I'm choosing the my target market as my target audience is ladies, so I need to start my marketing strategies on the basis of the ladies segmentation. How my promotion will lead to the how ladies behave, what ladies like for their skin products, or what are the image, what are the requirement of the image, what are the requirement of ladies if they want to start the product or if they want to buy that product. So basically I cannot satisfy everyone who is available in the market. I need to choose my target market, selecting that market on the basis of the segmentation which is done by my marketing research team. Then I need to decide my marketing strategy on the basis of my target market. Like if my target market is old people, though, then my whole marketing promotion will depend on the like how old people buy their products, what are the strategies which which attract them to buy the product. if my target market is like small children और छोटे बच्चों का मेरा टारगेट मार्केट है, आई नीड टू बाई इस वेरी, माई पैकेजिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, बहुत कलरफुल होगी और बहुत ज़्यादा जॉयफुल होगी. सो दिस इज़ द प्रोसेस विच ऑल द मार्केटर्स नीड टू डू बिफोर they want to start their marketing process. So target segmentation, basically what segmentation means selecting the target market who will buy my product, and then deciding my marketing strategies upon that. So basically selection means selecting your target marketing on the basis of your requirement, on the basis of your goal, on the basis of your product. So let's start the process to select the international market. So this is your पूरा का पूरा आपका प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू वांट टू गो टू द योर इंटरनेशनल मार्केट. लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई वांट टू कवर द होल वर्ल्ड. मेरे पास इतना पैसा है, मेरा प्रोडक्ट में इतनी वर्थ है कि दैट माई प्रोडक्ट कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल ब्रांड. सो दिस इज़ द इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. नेक्स्ट आ जाता है डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ मार्केट सिलेक्शन, कि मार्केट सिलेक्शन के क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं. क्या पैरामीटर, क्या वो कंपनी मुझे कंट्री एंटर करने के लिए अलाउ करेगी, क्या वो उस कंट्री के जो पैरामीटर्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट से पैरामीटर से मैच करते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक कि अगर मेरा प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अल्कोहल वाला प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन है, क्या वो मेरा प्रोडक्ट जाके आपको मैं इस्लामिक कंट्री में बेचती हूँ वो मेरा प्रोडक्ट ले लेंगे? नो, नहीं, कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि पैरामीटर्स ऑफ दैट कंट्री डजंट मैच विद माई प्रोडक्ट. Next है preliminary scanning. I need to do the preliminary scanning. First of all, I can say that pilot survey. First of all, I need to do the pilot survey. Pilot survey means like if I am going to buy my car, I need to take a test drive before buying that car. Preliminary scanning is also the same, or pilot survey is also the same. You need to test the product before the small group. मतलब मुझे कुछ लोगों का ग्रुप लेना है, उनके ऊपर सैम्पलिंग करना है कि क्या वो ऑडियंस मेरा प्रोडक्ट कैप्चर कर पा रही है, आर दिस माई प्रोडक्ट इज सेटिस्फाइंग दीज कस्टमर और नॉट, और ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है नहीं है. देन वो प्रिलिमिनरी स्कैनिंग करने के बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, देन इवैल्यूएशन एंड देन सिलेक्शन करा जाता है आपका.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केट सिलेक्शन इज टू डिटरमाइन एंड असर्टेन द एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मेरा अगर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है या मेरे को सोशली कुछ वेलफेयर करना है, प्रॉफिट मेरा मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव खाली क्या है कि कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। लाइक अगर हम बात करते हैं चाइना वालों की बात करते हैं, चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव होता है दे वांट टू हैम्पर आवर ओन कंट्री मार्केट, दे डोंट वांट, उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए, उनको क्या है कि हमारे कंट्री का डिमांड खत्म हो जाए। दैट इज व्हाई दे आर डंपिंग देयर प्रोडक्ट एट चीप रेट, मतलब जितना उनकी कॉस्ट आती है उससे भी चीप रेट पे वो डंप कर रहे हैं हमारे यहाँ प्रोडक्ट। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो इंडिया का प्रोडक्ट है, इंडिया के मार्केट के जो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर हो उनके मार्केट को हैम्पर करना। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। द मार्केटर जो सिलेक्टेड टू सर्व अ पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव नीड टू नेसेसरी बी यूज इन द सूटेड, मतलब सूटेड होना चाहिए टू अचीव सम अदर इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। सो उसका ऑब्जेक्टिव जो अचीव कर देना चाहिए। लाइक अगर हम चाइना वाले क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर हमारी एक हम यहाँ पे लेके आते हैं अपनी कुछ भी सामान लेके आते हैं वो हमारे को 20 रुपये का पड़ रहा है, इंडिया वालों की भी कॉस्ट 20 रुपये की पड़ रही है, चाइना वालों की कॉस्ट चलो 15 रुपये की पड़ रही है, बट दे आर डंपिंग देयर प्रोडक्ट एट ₹5 इन आवर कंट्री बिकॉज दे वॉन्ट टू हैम्पर द जो हमारे यहाँ के लोगों की जो लोकल डिमांड है उसको हैम्पर करना है। बिकॉज लोग तो जो सस्ता मिल रहा है वो खरीदेंगे ना। सो यहाँ पे हमारा डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट अर्न करना है तो आई विल डू दैट ऑल द, मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सारी उस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका पैरामीटर फॉर सिलेक्शन। अब मेरे को पैरामीटर पता होने चाहिए कि क्या क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं सिलेक्शन करूँगी। फॉर द प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द मार्केट इट इज़ इसेंशियल टू क्लियरली ले डाउन द पैरामीटर्स एंड द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। अगर मैं कोई इवैल्यूएशन कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए क्या क्या क्राइटेरिया, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द मार्केट आर रिसोर्सेज। लाइक मेरे को क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट वहाँ की अलाउ कर रही है नहीं कर रही, वहाँ के कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे नहीं करेंगे, कि वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कंपटीशन है नहीं। लाइक फॉर मी अगर हम बात करते हैं कि अगर जियो की बात करते हैं, जियो ने एक टाइम पे पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था, फिर उसके लिए तो वो सैचुरेटेड मार्केट हो गया था। अब इंडिया उसके लिए सैचुरेटेड मार्केट हो गया था, इससे ज़्यादा और कुछ वो अपने प्रोडक्ट इससे ज़्यादा कस्टमर वो नहीं बना सकता। सो उसने क्या करा, अपना प्लांट जाके अफ्रीका में लगाया, बिकॉज उसके लिए वो क्या हो गया, वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम अवेलेबल था, उसके लिए वो नया मार्केट हो गया। ये सैचुरेटेड मार्केट हो गया वो उसके लिए नया मार्केट हो गया। सो आई नीड टू डिसाइड द पैरामीटर बिफोर सेलेक्टिंग द मार्केट। नेक्स्ट आती है प्रिलिमिनरी स्कैनिंग। लाइक आई हैव टोल्ड यू लाइक इट इज़ लाइक जस्ट लाइक योर पायलट सर्वे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिलिमिनरी स्कैनिंग क्या होता है, इज टू एलिमिनेट द मार्केट विच आर नॉट पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे आपको रिजेक्ट करना होता है जो मार्केट आपके लिए पोटेंशियल नहीं है। लाइक अगर मेरा प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और मेरा बहुत ज़्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट है, सो मैं जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास को मैं उसमें से निकाल देती हूँ। अगर मैं मर्सिडीज़ की बात कर देती हूँ, सो मर्सिडीज़ यहाँ पे क्या होती है, उसके लिए पोटेंशियल बायर कौन नहीं है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को वो अपने उसमें से निकाल देती है। देन दे विल नॉट प्रमोट देयर प्रोडक्ट टू दीज कस्टमर्स। द पैरामीटर यूज फॉर प्रिलिमिनरी स्कैनिंग में वैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी कर सकते हैं। लाइक कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो एक ही कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट बना रही है, एक बहुत हाई एंड बना रही है, हाई एंड मतलब बहुत कॉस्टली बना रही है, एक बहुत लो एंड बना रही है। सो उसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए उसकी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है। हाउएवर द पैरामीटर लाइक द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पर कैपिटल इनकम होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हो जाएगा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, ये सब आपके लिए अफेक्ट करते हैं बिफोर प्रीलिमिनरी स्कैनिंग करने के लिए। बेसिकली प्रीलिमिनरी स्कैनिंग में क्या करते हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर नहीं होते उनको डिलीट कर दिया जाता है, जो मेरे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उनके बेसिस पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द मार्केट। अब मेरे को मैंने जो डिसाइड करा है, जो मार्केट को लिया है, उसको मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है। अब प्रिलिमिनरी स्कैनिंग इनेबल एलिमिनेट कर देती है ऑब्वियसली कि सारे के सारे को बहुत लार्ज एरिया को वो एलिमिनेट कर देती है, बट ऑब्वियसली डज नॉट कंसीडर अ वेरी आउटसाइड। बट फिर भी वो सारे को तो नहीं होगा ना। आपने ठीक है, आपने लोअर मिडिल क्लास, अब एग्जाम आपने लोअर मिडिल क्लास को ले चूज़ करा है या अपर मिडिल क्लास को चूज़ करा, आपने बहुत अगर रिच को करा है, अब रिच को पीपल को तो आपने चूज़ कर लिया। अब उसमें से आपको मेल फीमेल या फिर छोटे बच्चे बड़े बच्चे या फिर ओल्ड पीपल, आपको वो भी सिलेक्ट करना है।
प्रिलिमिनरी स्कैनिंग में तो आपने क्या चूज़ करा कि हायर मिडिल क्लास मैंने चूज़ कर लिया या फिर रिच पीपल मैंने चूज़ करा। अब नाउ यू विल डिसाइड कि लेडीज़ को चूज़ करेंगे आप, जेंट्स को चूज़ करेंगे, किस एज क्लास को आप चूज़ करेंगे। सो शॉर्ट लिस्टिंग मतलब आपने जो प्रिलिमिनरी स्कैनिंग में जो चूज़ करा है उसको भी और ज़्यादा कंसाइज कर देना, उसको और भी ज़्यादा छोटा कर देना। नाउ इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिस्टेड में से आपने जो चूज़ करा है उनको इवैल्यूएट करें, अब उनकी नेचर को जाने। अब अगर मैंने लेडीज़ चूज़ करा उसमें से तो लेडीज़ की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेडीज़ के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या उनका बाइंग बिहेवियर होता है, क्या उनका नेचर होता है, क्या उनकी डिमांड होती है, क्या क्या वो एक्सपेक्ट कर रही हैं एक प्रोडक्ट से, या व्हाट दे वांट फ्रॉम अ प्रोडक्ट, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट। और इफ़ आई एम अ यू नीड टू बी थिंक लाइक अ लेडीज़। इफ अगर आप लेडीज़ को अपना टारगेट मार्केट चूज़ कर रहे हो तो शॉर्ट लिस्टेड मार्केटर्स आर फर्दर इवैल्यूएटेड, उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, उन पर सैम्पल उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से वो सोचती हैं, क्या उनका सोचने का पैटर्न है। सो ये सब की चीज़ें की जाती है। अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चों को हमने सिलेक्ट करा तो छोटे बच्चों को क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, क्या उनको, अगर हम बात करते हैं लाइक किंडर जॉय की बात करते हैं, किंडर जॉय में कुछ भी नहीं निकलता, इतना छोटा सा निकलता है, उसमें 2 बॉल्स होती हैं चॉकलेट्स के साथ आपकी, और छोटा सा एक टॉय होता है। सो क्या करा है यहाँ पे उन्होंने देखा है कि बच्चों को पैकेजिंग बहुत अट्रैक्ट करती है, द वे दे वॉन्ट टू शो द प्रोडक्ट। सो उन्होंने क्या करा, उसकी तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कर दी, उसी तरह से उन्होंने पैकेजिंग स्टार्ट कर दी, छोटा सा गेम स्टार्ट दी, उसी को वो 30-35 रुपये में बेच रहे हैं। सो वो क्या है, आपने इवैल्यूएट करा, सिलेक्शन करा एंड उसी के बेसिस पे अपना पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के बेच दी। नेक्स्ट आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग मतलब अब जो आपने प्रोडक्ट करा है उसको एक्चुअली टेस्ट करना, मार्केट में जाके उसको टेस्ट करना। द मार्केट इज टेस्टेड ऑन द स्मॉलर स्केल में की जाती है बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। लाइक अगर हमने अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा, मैंने यूट्यूबर्स को दे दिया, लाइक मैंने लेडीज़ का अगर चूज़ करा तो मैंने लेडीज़ यूट्यूबर को दे दिया कि आप चूज़ करो, आप अपने कस्टमर को करो, आप यूज़ करके देखो, देन आप अपने इन्फ्लुएंसर हो, आप अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करो। तो टेस्ट मार्केटिंग इज डन बिफोर द launching the product actually in the marketing में। so they provide feedback about the market, वो कस्टमर को फीडबैक वो आपके कस्टमर्स को या फिर कंपनी को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि हाँ वो सेटिस्फाई हैं इस प्रोडक्ट से, या उनको वो अच्छा लग रहा है, या फिर वो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। सो अगर कुछ कमी होगी यहाँ पे इस प्रोडक्ट में, दे कस्टमर्स जो यहाँ पे कंपनीज के पास होता है कोप अप करने का टाइम होता है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट बिफोर एक्चुअली सेलिंग दैट इनटू द कंपनी में, या फिर हमारे को, या बिफोर सेलिंग दैम इनटू द एक्चुअल मार्केट में। क्लियर है ये आपको? कमर्शियल प्रोडक्शन नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन में होता है आप कमर्शियली उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। टेस्ट मार्केटिंग में जो कमियां लगी आपने उसको इम्प्रूव करा, फिर कमर्शियली आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। टेस्ट मार्केट के बाद जो, या फिर अगर आपका टेस्ट मार्केटिंग में सबको बहुत सेटिस्फाई हो गया, या फिर आप एक्चुअली वो प्रोडक्ट लॉन्च करो। सो कमर्शियल मार्केटिंग, आपका कमर्शियल प्रोडक्शन लास्ट होता है कि जब आप एक्चुअली आप उसको प्रोड्यूस करके बेच रहे हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्या सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दैट मार्केट सिलेक्शन और द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यू कैन आस्क मी इन योर जूम क्लासेस। थैंक यू।